A very warm welcome to all the students who are watching this video. As we have discussed in the last video about the chapter number 9 of history, traders, kings and pilgrims. Today I will continue the same chapter, but today topic will be king and pilgrims. Okay, so our chapter number 9. Traders, we have done kings and pilgrims. Traders we have done. Now about the kings, the southern half of the subcontinent, this is the half, wait, this is the Arabian Sea here, and here Bay of Bengal. And in the map, this all area are South India. We know that South India was famous for black pepper, gemstones, okay, and black pepper was also known as black gold. Now, about the New Kingdom and the coast, the southern half of the subcontinent is marked by a coastline. Okay, these are the coastline. ये सारे इस रूट से होकर के they used to trade. Okay, and among the river valleys, that is the Kaveri is the most fertile river. Okay, Kaveri is the most fertile river at that time. Remember it? Now, the chief and kings who control the river valleys became the powerful of the coastal area. Okay, जो उस समय जो चीफ होते थे, जो राजा होते थे, वो क्या करते थे, जो रिवर वैलीज, जो कोस्टल एरियाज होते थे, रिवर वैलीज वगैरह, उनको वो कंट्रोल करते थे. They have a very they are the kings and they have a power, so they control these areas, and the coast became rich and powerful. The kings became powerful and the rich. Okay, Sangam poem mentioned the Movendar. Movendar, that is a poem. This is Tamil word meaning three chiefs. Movendar. It's a Tamil word meaning three chiefs. Chief. Three chief. Okay, chief, senior, we can also call king. Used for the head of three ruling families, the Cholas, Cheras and the Pandyas. I hope it is clear to everyone. Now I am going to rub it. Three chiefs, Cholas, Cheras and Pandyas. We are going to read in detail about this three ruler families, okay, who became powerful in South India around 2300 years ago. They are very powerful in the South India, as I have show you in the map of South India. This area are the South India and they are the ruler of this area. Okay, Cheras, Cholas and Pandyas. Okay, each of three chiefs had two centers of power, one inland and on the coast. They have the power in inland, means in the South India, in the land they have power on the land, and on the coast. Okay, from where they trade. The chief did not collect the regular taxes. Instead, they demanded and received gift from the people. वो क्या करते थे? पहले तो मैं ये बता दूं कि जो 6 सिटीज थे ना, इसमें 2 शहर तो हो गए इनलैंड में और एक तो कोस्टल एरिया पे. ऑफ दिस 2 cities, 2 were very important and the most important cities were पुहार और कावेरी पट्टिनम.
The two important cities were two important cities. One is Puhar and the second is Kaveri Pattinam. ओके किंग्स क्या करते थे कि उनका पावर होता था एक अंदर में, मतलब जो साउथ इंडिया था अंदर में, और द कोस्ट पे उनका पावर होता था कि अगर आप यहाँ से भी जा रहे हो तो वो क्या करते थे, वो टैक्स लोगों से लेते थे कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो इस एरिया से तो यू हैव टू पे अ टैक्स। तो वो क्या करते थे, एज ए डायरेक्ट टैक्स लेने के अलावा दे डिमांडेड फॉर अ गिफ्ट, दे वांट समथिंग। तो वो क्या करते थे कि डिमांड करते थे कि आप मुझे टैक्स की जगह पे आप मुझे गिफ्ट्स दे दो, ओके, कुछ रिवार्ड कर दो। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट डायरेक्टली टैक्सेस, वो डायरेक्ट कलेक्ट नहीं करते थे टैक्सेस, ओके। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। और जो नेबरिंग एरियाज थी ना, इनके आसपास का जो भी एरिया था वो वहां से क्या करते थे, वो रिसीव करते थे गिफ्ट्स लोगों से और ट्रिब्यूट लेते थे अपने नेबरिंग एरिया से। अपने मिलिट्री को उन्होंने एक्सपेंड कर दिया था। दे हैव अ सैनिक हुआ करते थे, रूलर्स ऑब्वियसली दे हैव अ पावरफुल मिलिट्री, दे हैव अ पावरफुल मिलिट्री। सो वो अपने एरियाज को और बाकी सब में अपने मिलिट्री को एक्सपेंड कर चुके थे एंड कलेक्ट करते थे ट्रिब्यूट अपने आसपास पड़ोसी जगह से। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग्स देयर सपोर्टर्स। कुछ अपने जो भी उन्हें मिलता था टैक्स की जगह पे, कुछ वेल्थ वो अपने पास रखते थे और कुछ जो था वो अपने उनके जो सपोर्टर्स हुआ करते थे, जो किंग्स हुआ करते थे, जो उनकी बातें मानते थे, वो उनके लिए कुछ वेल्थ रखते थे। उनकी इसमें कौन कौन होते थे जो उन्हें सपोर्ट करते थे, उनके फैमिली मेंबर, उनके पोएट जिनसे वो बहुत सारे कविता सुनते थे। दीज आर द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड फैमिलीज थी उनकी, सोल्जर्स थे, दे आर द सोल्जर्स हु कंट्रोल देयर मिलिट्री, okay. Many poets whose composition were found in the Sangam collection composed poem in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold horses, elephants, chariots and fine clothes. राजा महाराजा के लोग के टाइम में क्या होता था कि उनके पास दे डोंट हैव अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक वी हैव नाउ, टीवी एंड इंटरनेट। सो उनके पास क्या होते थे कि उनके पास कवि हुआ करते थे, पोएट हुआ करते थे और वो उनके ही फेवर में उनके बारे में लिखा करते थे। तो वो राजा उस टाइम पे बहुत खुश हुआ करते थे कि देखो ये कवि है, मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें लिख रहा है। तो ये खुश होकर के वो उन्हें रिवॉर्ड दिया करते थे। रिवॉर्ड में होता था गोल्ड होता था, सिल्क के क्लॉथ्स हुआ करते थे, फाइन फैब्रिक्स के गारमेंट्स हुआ करते थे, कुछ प्रीसियस स्टोन हुआ करते थे जो उनको गिफ्ट में रिवॉर्ड में दिया जाता था, ओके। कभी कभी उनको एलिफेंट्स भी दिया करते थे। एलिफेंट्स एट दैट टाइम वाज अ साइन ऑफ यू नो पावर। लोगों के पास, बड़े लोगों के पास होते थे, किंग्स के पास हुआ करते थे। अराउंड 200 years later, dynasty known as Satavahanas. Now हम लोग सतवाहनास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, but I will continue about the Satavahanas in next class. Satavahanas. Always remember the topic which is started from the South India. ओके, साउथ इंडिया से हमने क्या क्या अभी तक हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि साउथ इंडिया में हमने देखा कि ब्लैक पेपर के बारे में पढ़ा हमने कि प्रेसियस स्टोन्स मिले थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो कावेरी थी मोस्ट फर्टाइल रिवर थी। उसके बाद संगम पोएम के बारे में पढ़ा था हमने, जिसके बारे में मूविंदार कहते हैं। तमिल वर्ड थी जिसका मतलब होता है थ्री चीफ, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ओके। फिर हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इनके कैपिटल्स क्या कहाँ पे थे। जो दो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कॉस्ट था और इनलैंड था, पुहार और कावेरी पट्टिनम। कावेरी पट्टिनम जो पोर्ट था चोलास का, एंड द मदुराई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास, ओके। तो फिर हमने ये पढ़ा कि चीफ खुद से डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते थे, उसके जगह पे वो गिफ्ट्स ले लिया करते थे। दिस ऑल आर द we have studied today. So we will continue in the next class. So thank you so much for watching my video.